ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLAಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದು 224 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕುನ್ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಂಸದರು ಹೌದು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಣಪತ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಂತೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಂದನ್ ಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸುಕುನ್ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲದ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಂಸದರು, MP ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ MP ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ 16 ಜನ MPಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವರು ಸ್ವತಃ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ನಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಅದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥವರು. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿರಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮಹಾಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಗಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರದ್ದು ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮಹಾಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದರದೆಲ್ಲ ವಿವರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಅವರು ಶಿರ್ಸಿಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿಗೂ ಗೋಣಿಚೀಲ ತಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಸಂಬಂಧ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಡಿಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸುಪಾರಿ ಯಾಸೆ ಉದರ ಜಾತಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನೀರು ವರ್ಧಾ ನದಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಡೌನಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಬರಿಂದ ಬರುವ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೀರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೀರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀರೆ ಬರ್ತದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ कॉटन, प्योर कॉटन। और गोस्मिक भी इधर आता है ना, सोने का काम अभी अभी ज्यादा आ रहा है, गोल्ड स्मिथ हो गया।
ಚೀಲ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸೆಣಬು. जूट बैग जूट बैग उधर से यहाँ बहुत चलता है वहाँ से उधर इधर से आता है वो सुपारी वो भरने के लिए वो जूट बैग ही ज्यादा इस्तेमाल होता है ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಅವತ್ತು ಚೂರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅವರು ಇವತ್ತು ಶಿರ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕರಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ हिंदी में बोले। चले नमस्कार सबको। कागरी साहब हमारे बीच में उपस्थित है, जो यहाँ से 3 बार जीत चुके हैं, 4थी बार जीतने वाले हैं। और आप जानते हैं बड़ा बड़ा दायित्व उन्होंने संभाला है। बाकी पार्टी के बहुत सारे हमारे पदाधिकारी इधर है। देखिए ये सरकार हमारी जो यहाँ पे चल रही है, ये डबल इंजन सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार चल रहा है और यहाँ पे हमारा बीजेपी का, भाजपा का जो बसवराज मुंबई जी का सरकार चला, 4 साल तक हम यहाँ पे अपना काम किया। और डबल इंजन सरकार रहने से कैसे राज्य का उन्नति होता है, अभी हमारे बीच में जो अनौपचारिक बातचीत चल रहा था उसमें प्रमाणित हो चुका है। देखिए पश्चिम बंगाल में सोने का काम करने के लिए पश्चिम बंगाल से हजारों की संख्या में लोग इधर कर्नाटका में आता है, इवन सिरसी में भी आ रहा है, इतना दूर। तो इसका कारण क्या है? कल मैं होटल में रुका बेंगलुरु में, जो होटल में जो वेटर था वो भी पश्चिम बंगाल से आया हुआ, 3 वेटर में 1 पश्चिम बंगाल से आया हुआ है। डबल इंजन सरकार होने के कारण यहाँ पे जो इकोनॉमिक वृद्धि हुई, जो यहाँ के इकोनॉमी का इतना बढ़ावा हुआ और एक के बाद एक काम हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे जॉब फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्ट बंगाल। तो इसके वजह से वेस्ट बंगाल से लोग इधर आने के मजबूर हो रहे हैं। दूसरी बात, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि देखिए एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि बॉर्डर जो है, एक बॉर्डर स्टेट है, आप जानते हैं वेस्ट बंगाल, जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ है वो पोरस है। पोरस क्यों है? फेंसिंग रहता है उधर बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के बीच में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द लैंड। इसके वजह से हर जगह में फेंसिंग नहीं है। और ओपनली चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि वहां पे एनआरसी वगैरह कुछ की जरूरत नहीं है, जो लोग इधर आएगा वही नागरिक है हमारा। मतलब चीफ मिनिस्टर खुद बोलता है कि इन्फिल्ट्रेशन हो इनडायरेक्टली, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, कोई उग्रपंथी उधर से घुस गया, कर्नाटका चलाया, बेंगलुरु चलाया, बेंगलुरु में बहुत लेबर्स आते हैं, जो लेबर्स आते हैं वो पश्चिम बंगाल के हैं या बांग्लादेश के हैं, आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आप डिफरेंशिएट ही कर नहीं सकते। ये सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जो सरकार के वजह से वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इधर हमारा डबल इंजन सरकार होने के कारण हम राष्ट्रीय सुरक्षा यहाँ पे अव्वल दर्जे का है और हमारी सरकार किसी भी बात में राष्ट्र हित के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कागरी जी ने बताया पार्टी विद डिफरेंस है। हम बिलीव करते हैं कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। सबसे पहला देश का महत्व होना चाहिए। अगर ऐसा डिसीजन हमें लेना पड़ा कि जिसमें पार्टी का क्षति हो लेकिन देश का अच्छा होगा, तो हम वो भी डिसीजन लेंगे। मुझे उम्मीद है कि उत्तर कर्नाटका में सबसे ज्यादा मार्जिन से ये जो सिरसी असेंबली है हम जीतने वाले हैं। इससे पहले भी हम जीते, 13 में हमारा सबसे टफेस्ट कंपटीशन था, लेकिन उस समय भी हम जीते। आगे आने वाले चुनाव में, जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में भी हम जीतेंगे और कागरी साहब 7वीं बार के लिए यहाँ से एमएलए बनेंगे और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4थी बार वो एमएलए बन के जाएंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. अभी पश्चिम बंगाल में वो स्थिति सुधार नहीं सकते क्या? देखिए पश्चिम बंगाल में स्थिति तभी सुधरेगा जब डबल इंजन सरकार यहाँ की तरह बनेगा और बहुत जल्दी उधर डबल इंजन सरकार बनने वाला है। और मैं एक चीज बोलना भूल गया, ये जो अभी
मैं पश्चिम बंगाल का आदमी हूँ, मैं अभी कर्नाटका में शिरसी में आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने तमिल संगमम करके जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट दिया है, हमारे पार्टी ने, मुझे लगता है कि ऐसे कार्यकर्ता के, एक जगह का कार्यकर्ता, एक स्टेट का कार्यकर्ता यहाँ के आके दूसरे स्टेट में काम करने से एक भारत श्रेष्ठ भारत का धारणा और भी मजबूत होगा। मैं बंगाल का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन यहाँ शिरसी में हमारे कार्यकर्ता हमें स्वागत कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, इधर आदर जतनी, इधर सम्मान दे रहे हैं। इससे देश में जो एक माहौल, जो वामपंथी बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल्स, कांग्रेस, राहुल गांधी जैसे कॉन्सेप्ट क्रिएट किए हैं कि एक देश एक नहीं है, बहुत सारे देशों का मिलन है, ऐसा नहीं, ये देश एक ही है, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही है। मंदिर में जाके जब हम गोत्र बोलते हैं तब सब समझ में आता है कि कैसे हम पूरा भारत एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर बंगाल में बीजेपी सरकार आए तो ये बॉर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ऑब्वियसली बॉर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और इससे आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि इससे जो बांग्लादेशी अभी इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और वो आके बेंगलुरु में, पश्चिम बंगाल में 3 महीना रहा, आधार कार्ड बना लिया, वोटर कार्ड बना लिया, बेंगलुरु आ गया, बोलेगा पश्चिम बंगाल का मैं आदमी हूँ, आप उधर उसको बाहर भी निकाल नहीं सकते। तो इससे डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज भी रुकेगा, नहीं तो ये बहुत आने वाले समय में बहुत बड़ा मुश्किल पूरे देश के सामने आने वाला है। सर, GST issue, petrol and gas rate higher. How to define BJP government? Sir, see, the price of the petrol and the diesel depends upon the international market. Okay, in this global economy, you can't make your country separate from whole world. It is a world is a now total world is a one financial village. So you have to be in that chain. And now, for the last few months, almost 1 year, the war between the Ukraine and Russia is going on. So that is the one of the most reason why the rate of the petrol and the diesel is increasing. Although our central government decreased the central cess twice on petrol as well as on diesel. In here also I think our state government also come किया है ना? cess कम किया है. But in the state of West Bengal, if you see what is the difference in double engine government and single engine government, in the state of West Bengal, the current price of the petrol and diesel is higher in comparison to your state, because the state government did not decrease a single penny from the state's share, not a single penny, but central government decreased twice in the petrol and the diesel price. सर, आपका वरिष्ठ नेता अमित शाह से लेके सभी इधर चुनाव का प्रचार में, लेकिन उस तरफ बंगाल में ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने कल एक मीटिंग किया था आपके जो अगेंस्ट टीम बनाने के लिए अगले MP चुनाव के लिए, इस बारे में क्या कहना? देखिए, लास्ट जो इलेक्शन था 19 में भी ममता बनर्जी ने सारे ये लोगों को, और ये लोग कौन से लोग हैं? जो रिजेक्टेड लोग हैं, जो डायनास्ट है और जो करप्ट है। अब तेजस्वी यादव को ले लीजिए, उनका पिताजी करप्शन में जेल में है, वो भी जाने वाले हैं, लाइन में ही है, वो भी जाएगा जेल के अंदर। तो ऐसे लोग अगर एक साथ मिल भी जाए, ममता बनर्जी भी सेम है, ममता बनर्जी अपने भतीजे के हाथ में पूरा पार्टी सौंपने जा रहा है, अभी सौंप दिया, अभी उनका भी राहुल गांधी जैसे यात्रा निकल रहा है पश्चिम बंगाल में, more than 250 टेंट्स खड़ा किया जा रहा है, करोड़ों पैसा यात्रा के लिए जा रहा है, गरीब आदमी को देखने के लिए जा रहा है आदमी, क्योंकि उसको पता ही नहीं बंगाल क्या है। तो ऐसे डायनेस्ट और करप्ट लोग एक साथ जब आएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। ऑलरेडी अमित शाह जी ने एक सभा कर चुके हैं उधर पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में भी करेंगे, इधर भी प्रचार में है। 300 के ऊपर सीट लेके फिर से मोदी जी की सरकार बनने वाली है, आप आश्वस्त रहिए। पश्चिम बंगाल में भी पिछली बार 19 साल में हमने 18 सीट जीते थे, इस बार हम 35 पार करेंगे, ये हमारा वादा है। अमित शाह जी भी पिछले दिन पश्चिम बंगाल विजिट में जाके बोले हैं, रिसेंटली नेशनल टीवी में भी उन्होंने बताया कि वी विल क्रॉस 35 सीट्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
सर विपक्ष ने कह रहा है आप बीजेपी वालों ने केवल मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, मगर अभिवृद्धि कोई नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी हमारे नेता है, ये तो हमारे सौभाग्य है, इतना अच्छा नेता मिला है हमें। उनके पास नहीं है तो उसका दुख रोना उनको रोना है, हमें कोई रोना नहीं है। मोदी जी हमारे पास है और हम भाग्यशाली है। भारतवर्ष में कभी किताब लिखा जाएगा मोदी जी का एरा खत्म होने के बाद कि हम मोदी जी के एरा में जिए। ऐसा प्रधानमंत्री देश को बहुत अरसे बाद मिला है और ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को आगे लेके जा रहा है। पूरे देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और जैसे आपको भी पता है, इंटरनेशनल सर्वे में भी आया 76% लोग समझते हैं कि वर्ल्ड लीडर अभी है वो नरेंद्र मोदी। सर, अभी आपने इंटरनल सिक्योरिटी का जो बात की है, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर ने वो पुलवामा के बारे में प्रस्ताव किया था और उसके रिलेटेड जो 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो आप किस तरह डिफेंड करते हैं ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है? देखिए, जो गवर्नर साहब एक्स गवर्नर साहब ने बताया उसके बारे में ऑलरेडी अमित शाह जी बोल चुके हैं कि जो सारी चीजें वो अभी बोल रहे हैं, जब हमारे साथ थे या गवर्नर साहब थे तो अब क्यों नहीं बोले? अब वो बोल रहे हैं तब नहीं बोले थे, अब याद क्यों आ रहा है? तब भी याद आना चाहिए था ना, तब सरकार को सजेशन दे दो तो काम होता। अब बोलना चाहते हैं बोलने दीजिए। इस देश में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो चाहे बोल सकते हैं। या प्रधानमंत्री को आप मौत का सौदागर तक बोल सकते हैं। हाँ, जनता इसका जवाब है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम 0 टॉलरेंस पे बिलीव करते हैं। 370 हमने हटाया कश्मीर से, कश्मीर शांत रहा। कुछ दिन पहले एक घटना घट गई है, अब उसके बारे में जो केंद्रीय एजेंसियां है वो जांच कर रही है और वो देखेंगे क्या कहाँ पे खामियां रहेगी। लेकिन कश्मीर को हम ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं 370 हटाने के बाद। आगे आने वाले समय में बदला हुआ कश्मीर भी आपको दिखेगा। और विपक्ष का आरोप है कि वो ईडी और आईटी या सीबीआई सिर्फ वो उन्हीं लोगों का टारगेट कर रहे हैं जो बीजेपी का अगेंस्ट है। अभी आपने बताया अभिषेक बनर्जी है, लालू यादव जी है और अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ने केजरीवाल को भी नोटिस दे देता, तो उनके बारे में आपका क्या है? देखिए, हमारे जो विरोधी है ना, वो विरोधी खुद का स्टैंड पहले क्लियर किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, बोल रही है ना। उसी कांग्रेस के लीडर अधीर चौधरी को अगर आप बंगाल के बारे में पूछेंगे कि सीबीआई ईडी टीएमसी के मंत्रियों को पकड़ा है, नेता को पकड़ा है, तो अधीर चौधरी बोलेगा सीबीआई ईडी अच्छा काम किया है। राहुल गांधी जब केरल में जाते हैं तब जाके बोलते हैं अरे सीबीआई मुझे बुला रही है, पिनराई विजयन को नहीं बुला रहा है। राहुल गांधी खुद कहते हैं। तो हमारे विपक्ष के लोग खुद को चोर बोल रही है। जो कांग्रेस बोल रही है कि हम सीबीआई ईडी को लगा रहे, वही कांग्रेस पश्चिम बंगाल यूनिट बोल रहा है कि नहीं, सीबीआई एंड ईडी इज डूइंग ए ग्रेट जॉब। तो हमारे विपक्ष को पहले अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि कौन कौन चोर है उनमें, वो खुद बता दे, हम उनके पास ही ईडी सीबीआई को भेजेंगे। अभी जो पार्टी का इलेक्शन चल रहा है इसमें बीजेपी से स्प्लिट होकर जो खड़े हो रहे हैं उनका भी प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, उसके लिए आपका एजेंडा क्या है? देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो बता चुका है, कुछ लोग गए हैं, ये दुखद चीज है हमारे लिए। लेकिन इससे क्या होता है कि भाजपा एक हम आइडियोलॉजिकल पार्टी है। यहाँ पे नेता होता है, मोदी जी भी नेता है, हमारे कागेरी साहब यहाँ के नेता है, लेकिन नेता तब तक ही रहता है जब उसके पीछे कमल का छाप होता है। जब कमल का फूल नहीं रहता तो हमने देखा है उमा भारती जैसा नेत्री भी अलग होके ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे वोट पार्टी का होता है, आइडियोलॉजी का होता है। तो जो गए हैं इसका दुख है हमें, लेकिन पार्टी का वोट शेयर नहीं गया है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के साथ है, वो नेता को देखता है तब तक, नेता के पीछे चलता है जब उसके हाथ में कमल का फूल होता है। जब वो फूल नहीं रहता तब नेता को भी फॉलो नहीं करता हमारे। ಸರ್ ಕಾಗೇರಿ ಸರ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಹತ್ವದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದಾರೋ ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಒಟ್ಟು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಡೆದು ಆಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದು, ಒಡೆದಾಳೋದು. ಇದನ್ನು ಜನ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಕ್ಕೆ, ಜನಸಮುದಾಯದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಇರೋ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಯೇನ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ